The question is, explain the concept of glass ceiling and explore its impacts along with strategies to break through it. Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject wise PYQ sessions, 18 full length tests, including 2 essay tests, model answers for all test papers, post test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now this question is asked under 250 words. So basically this is a 15 marker question. You have to answer this question in a little bit detail compared to what you answer in a 10 marker question. We have already discussed all these things. So we are going to follow the same procedure. Now if you'll see the syllabus that this question is related, GS1, you will find a topic: role of women and women organizations, population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problem and their remedy. Now if you have read editorials of Hindu, Indian Express, or for that matter any other paper that is relevant, you must have seen the term glass ceiling. Whenever you are reading an article based on gender diversity, or you may say the women empowerment, or something some topics similar to that, you must have heard about this term, that is glass ceiling. So what is the question asking is, first you have to explain what is the glass ceiling. What do you mean by glass ceiling? Second, explore its impact. What is its impact on our society or on the people? And the third is, along with strategies to break through it, how you're going to strategize, how you're going to remove the glass ceiling from our society. So basically there are 3 requirements. First, you have to define what is glass ceiling. Second, explore its impacts, and third is the strategies to break through it. Now let's start. The first part we have already told you is the introduction. Introduction is basically a process, a procedure by through which basically you try to tell the examiner that you have understood the requirement of the question. तो यहाँ पर आप start करेंगे, जैसे एक definition है कि ये आखिर ये आया कहाँ से, ये glass ceiling term आया क्या और ये है क्या. तो आप इसके origin genesis को अगर आप जानेंगे, if you are knowing about all these things, आप आंसर को बहुत इफेक्टिव बना सकते. ऑब्वियसली ये जो टर्म है किसी ने कभी ना कभी तो बोला होगा, तभी जाके ये इतना प्रेवेलेंट हो गया, फिर फ्रीक्वेंट यूज होने लगा और अब जाके जो है एक ये रियल इशू बन गया है. तो एक राइटर है, अमेरिकन राइटर है, जिनका नाम है मैरिलिन लोडेन. इन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को कॉइन किया था. तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. यू कैन राइट डाउन दिस इन्फॉर्मेशन एनीवेयर. इफ any such question come regarding glass ceiling, or you may say gender discrimination or something like this, तो आप इस तरह के informations को use कर सकते हैं while framing your answer. यही छोटे छोटे चीज जो है आपके आंसर्स को improve करेंगे, आपके मार्क्स को improve करेंगे. तो इसको बहुत ध्यान से देखिए. Although this is a free initiative, this is a free for all initiative on YouTube, but don't take it lightly, because this is going to be very beneficial for you for your future mains preparation also, and even the students who are giving mains this year also, this is going to be very important, because we are discussing the most important part of answer writing, that is the first, writing an answer within time constraint. Second, how you are going to address the requirements of the question, and third is how you're going to frame all the information that you have into a beautiful and you may say comprehensive answer. So let's see what Marilyn Loden said. First coined the phrase glass ceiling while speaking as a panelist at the 1978 Women's Exposition in the New York. The term glass ceiling refers to a मेटाफोरिकल इनविजिबल बैरियर. यहां पर क्या है, इन्होंने कहा कि ग्लास सीलिंग जो है बेसिकली इज एन इनविजिबल बैरियर, जो कि प्रिवेंट करता है, जो कि आप बोल सकते हैं दैट स्टॉप्स, इस तरह से जो रोकता है सर्टेन इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग प्रमोटेड टू मैनेजरियल एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास सीलिंग बेसिकली एक इनविजिबल बैरियर है, एक इनविजिबल लिमिट है, जो कि सर्टेन इंडिविजुअल्स को, खास करके विमेन, पीपल फ्रॉम सर्टेन रेस दैट इज सीन इन अमेरिका, इन यूएसए. तो यहां पर क्या होता है, आपको ब्रॉड डेफिनेशन बनाना है. देखिए, ग्लास सीलिंग जनरली व्हाइल वी टॉक अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ विमेन, बट ग्लास सीलिंग आल्सो एग्जिस्ट इफ यू टॉक अबाउट सर्टेन रेसेस दैट फेस इन दी अमेरिका, जैसे यूएसए में है और वहां बाकी कंट्रीज में भी जो है इवन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके वजह से एक इनविजिबल ग्लास सीलिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी. तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितने भी पोटेंशियल वाले हो, आप कितने भी डिजर्विंग हो, लेकिन इस पोजीशन
पोजीशन के ऊपर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और ये सारे सोसाइटीज में, खास करके मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज में, पैट्रियार्कल सोसाइटीज में इस फेनोमेना को देखा गया है। मतलब कि हायर मैनेजरियल पोजीशंस जो होते हैं उस पे आपका जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि नॉट सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल लाइक विमेन, पीपल फ्रॉम सर्टेन रेसेस आर नॉट अलाउड टू टेक द टॉप पोजीशन। ये कहना है और ये दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में ये नॉर्म हो, बहुत जगह अब तो काफी सोसाइटी बदल गया है। वी हैव अ लॉट ऑफ विमेन सीईओज एंड सीएफओज बड़े बड़े कंपनीज की, तो अब ये बात एग्जिस्ट नहीं करता है। बट स्टिल क्योंकि ये एक इशू है जिसको बहुत टाइम जो है बहुत सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एड्रेस किया है कि स्टिल बहुत सारे डेवलपिंग एंड इन सम डेवलप्ड कंट्रीज इस फेनोमेना को देखा गया है, जिसकी वजह से विमेन पार्टिसिपेशन एट द हायर लेवल नहीं हो पा रहा है। तो आपने ये एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज द ग्लास सीलिंग एंड दैट इट इज एन इनविजिबल बैरियर दैट प्रिवेंट्स सर्टेन इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग प्रमोटेड टू मैनेजरियल एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन। आपने डिफाइन कर दिया। नाउ द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सप्लोर इट्स इम्पैक्ट्स। तो आपको इसके इम्पैक्ट्स को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आपके पास देखिए ज्यादा टाइम नहीं है। यू हैव टू गेट टू दी पॉइंट कि आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। आपने अगर इंट्रोडक्शन में ही अगर ग्लास सीलिंग को बता दिया तो इसके बाद आपको बॉडी में ग्लास सीलिंग की डेफिनेशन पे ज्यादा वर्क नहीं कर, रादर देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू इट्स इम्पैक्ट्स। अब देखिए बिकॉज दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन 250 वर्ड्स, तो बॉडी में भी हम लोग को पता है दो पार्ट हमें जो है एड्रेस करना है। वन is to explore its impacts and the second is strategies to break through it. So you can write 5 to 6 or you may 7 points within impacts and you can write 5 to 6 points within these strategies to break through it and then you need to write a conclusion. अगर आप इतना करते हैं तो obviously you are going to getting close around 250 words, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप points बनाएंगे या फिर आप section बनाएंगे तो आप word limit को exceed कर जाएंगे। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। डायरेक्ट जो है नीड को एड्रेस करिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर दिया, इफ यू हैव डिफाइंड अबाउट ग्लास सीलिंग क्या है इंट्रोडक्शन में, तो देन देयर इज नो नीड टू फर्दर यू मे से राइट ऑन दैट। डायरेक्टली आप जो है एड्रेस करिए व्हाट इज द रिकॉर्ड। तो हम लोग करते हैं इंपैक्ट की बात करें तो इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी क्या है। फर्स्ट क्या है, इट क्रिएट्स इनविजिबल बैरियर। ऑब्वियसली हमने यही पढ़ा, तो आपका ग्लास सीलिंग का यही मतलब है कि ये अनसीन आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर देता है दैट इनहिबिट्स द एडवांसमेंट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स पर्टिकुलरली विमेन एंड माइनॉरिटीज इन प्रोफेशनल सेट। तो इसको आपको जब भी आप किसी पॉइंट को लिखते हैं तो यू हैव टू वैलिडेट थ्रू सर्टेन डेटास अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक फोरम इन द entry level positions, women make up about 48%, managers level drops to 38% and vice presidents तक जाते जाते और भी घट जाता है। तो ये देखिए ये जो कितना है एप्ट डेटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया हुआ है कि एंट्री लेवल पे काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है women का, लेटर ऑन जो नेक्स्ट पोजीशन पे है उस पे उनका पॉपुलेशन घट जाता है, फर्दर सीनियर लेवल पे घट जाता है। तो इसी का मतलब ग्लास सीलिंग है कि जब आप हायर लेवल्स पे जाने लगते हैं तो यू आर नॉट अलाउड इररेस्पेक्टिव कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितना डिजर्विंग। तो इसी का मतलब है ग्लास सीलिंग। तो आप इस पहले पॉइंट में you can validate by certain statistics. The second point you can write the impact under impact is generate gender inequality. As we discussed earlier कि the glass ceiling exists not just with the women, with certain category of section of society also. लेकिन अगर हम लोग women की बात करें तो definitely ये जो है glass ceiling क्या है, चाहे आपका सोसाइटी में कितने भी gender equality रहे तो एक तरह का ये gender inequality create करता है। अगर आप अगेन डेटा से सफाइस करिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 by WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ओनली 28.7% ऑफ द मैनेजरियल पोजीशंस आर हेल्ड बाय वुमेन। तो अगेन आप इस डेटा से सफाइस करते हैं कि वर्ल्ड ओवर डिस्पाइट कि हम लोग कितना जेंडर डाइवर्सिटी और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तब भी अभी भी ग्लोबली ओनली 28.7% मैनेजरियल पोजीशंस जो है वो वुमेन के द्वारा जो है वो हेल्ड किया गया हुआ है। तो आप यहां पर समझ रहे हैं कि ये पॉइंट को आपने वैलिडेट कर। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस। द ग्लास सीलिंग रिफ्लेक्ट्स डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एंड बायसेस एटीट्यूड दैट हिंडर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज जेंडर, रेस, एथनिसिटी और एज। अब होता क्या है, देखिए डिस्क्रिमिनेशन एंड बाइस की वजह से इनका रिप्रेजेंट क्योंकि परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है तो ये इनका एक तरह से बोल सकते हैं डेवलपमेंट रुक जाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको एक जो है उनका डेवलपमेंटल रुक जाता है और इसके वजह से क्या होता है कि जो लेटर जो नीचे भी पोजीशंस में जो है फॉर एग्जांपल जो वुमेन है उनको भी आप समझ सकते हैं कि एक तरह से उनका एस्पिरेशनल लॉस है। उनको लगता है कि कभी दे कैन नॉट गेट टू दी हायर पोजीशंस। तो इस तरह से जो है वो पूरे सोसाइटी का लॉस है एंड हम लोग हो सकता है कि उस तरह से अपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को हम लोग अपने रीच नहीं कर पा रहे। इसके बाद लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में उनका रिप्रेजेंटेशन लॉस होता है। अगर टॉप लेवल पे रहते तो उनका काफी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन नहीं है तो इसकी वजह से जो है आप समझ रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद इसके ड्यू टू ग्लास सीलिंग ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी और प्रैक्टिसेस भी हिंडर होते हैं। एक जनरल सा नॉर्म बन जाता है किसी भी कंट्री में कि विमेन्स तो नहीं अलाउड होने चाहिए या फिर आप बोल सकते हैं कि दे आर नॉट कैपेबल इनफ। तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये कल्चर भी बन जाता है। तो दीज आर दी इंपैक्ट्स दैट हैपेंस ड्यू टू ग्लास सीलिंग। इसके बाद आप बोल सकते हैं कुछ
और पॉइंट्स जैसे करियर स्टैग्नेशन। आप बोल सकते हैं कि करियर स्टैग्नेशन बेसिक डेफिनेटली बिकॉज अगर आपको हायर पोजीशन पे अलाउ नहीं किया जा रहा है, अगर आप अपने एपिटोम ऑफ करियर पे नहीं पहुंच पाते हैं जस्ट ड्यू टू एन इनविजिबल बैरियर और आप बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, तो एक करियर स्टैग्नेशन होने लगता है। और थोड़ा दिन के बाद क्या होता है कि यू गेट बोर्ड, क्योंकि आप ऑब्वियसली कोई आदमी को जब भी प्रोग्रेस नहीं दिखता है तो वो गेट बोर हो जाता है अपने काम से, एंड फाइनली क्या होता है कि वो वर्कफोर्स से निकल जाते हैं एंड दे स्टॉप वर्क। तो इस तरह का काम होता है, करियर स्टैग्नेशन देखने को मिलता है। इसके बाद टैलेंट ड्रेन। नाउ दिस इज अ वेरी एप्ट पॉइंट, आपको लिखना चाहिए। टैलेंट ड्रेन डेफिनेटली होता है क्योंकि अगर आपको पता है किसी कंट्री में इफ वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन दी हायर पोजीशन, तो उनको लगेगा कि दे शुड मूव टू अ बेटर प्लेस जहां पर उनके टैलेंट को जो है इज्जत दी जाती है या फिर तरजीह दी जाती है, तो वैसे जगह पे दे विल मूव। तो ये अगेन लीड्स टू दी लॉस ऑफ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स किसी भी कंट्री के लिए। और आपको पता है इंडिया में भी ये कहा जाता है कि अगर वुमेन अपने फुल पोटेंशियल से वर्क करें तो वी कैन ग्रो एट अराउंड 7 to 8% ऑन अ ईयरली बेसिस। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा जीडीपी ग्रोथ लॉस हो रहा है जस्ट ड्यू टू कि वुमेन वर्कफोर्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। इसके बाद क्या है, मिस्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली बहुत सारे टैलेंट्स जो कि ऊपर आके बहुत अच्छा कर सकते थे वो मिस हो जाते हैं जस्ट ड्यू टू क्योंकि एक नॉर्म सा बन गया है, एक मान्यता सा बन गया है कि ये जो है अपर लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से ये हमारा ही लॉस है कि बिकॉज वी आर गोइंग मिसिंग ऑन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एंड द फाइनल यू कैन राइट अ पॉइंट, एन एक्स्ट्रा पॉइंट की इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं बिकॉज द मोमेंट आप ऊपर लेवल पे जाते हैं यू स्टार्ट गेटिंग हायर सैलरी। अब इस केस में क्योंकि ये ग्लास सीलिंग जो है एग्जिस्ट करता है और सेम पोजीशन पे इफ अ मेन एंड वुमेन आर एम्प्लॉयड इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां पर सैलरी डिफरेंसेस भी रहता है। तो अगेन ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी क्रिएट करता है। और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस कैसे क्रिएट करता है? ऑब्वियसली जब वुमेन के पास कम पैसा होता है तो दे इंडिपेंडेंस उनका कम होता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कम होता है और बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस 6 to 7 पॉइंट्स, यू मे से वी हैव डिस्कस 8 पॉइंट्स, यू कैन राइट एनी 5 or 6 पॉइंट्स आउट ऑफ दीज। कुछ पॉइंट्स जो है आपको रिडंडेंट लगे तो आप अपने हिसाब से उसको जो है वो देख सकते हैं कि आपको यूज करना है या नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ब्रेक ऑल दीज ग्लास सीलिंग्स दैट एग्जिस्ट। कैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए और कैसे सोसाइटी को करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स। आई एम डिस्कसिंग सम जेनरिक पॉइंट्स, आप इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अलॉन्ग विद डेटा यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आई एम जस्ट एड्रेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग एन आउटलाइन अबाउट द मॉडल आंसर। इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। ऑब्वियसली कंटेंट डिपेंड्स ऑन योर इन्फॉर्मेशन, आप कितना जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, इस पे डिपेंड करता है। और आप कुछ इंफॉर्मेशंस आप हो सकता है बाकी बाहर से भी लाकर यू कैन ऐड इन योर नोट्स ऑल्सो। अगर आप इस पे लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन ग्लास सीलिंग, आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एंड यू राइट दैट इन योर नोट्स सो दैट यू कैन यूज दैट इन अ मेंस एग्जाम। चलिए यहाँ पर क्या है, जैसे प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, तो इसे हमें प्रमोट करना चाहिए। जैसे इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट फॉस्टर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन सच एज इंक्लूसिव हायरिंग प्रोसेस। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला जा रहा है कि आपको इंक्लूसिव हायरिंग प्रोसेस करना है, डाइवर्स कैंडिडेट स्लेट्स बनाना है एंड डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। तो इस तरह की चीज अगर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो एक कल्चर डेवलप होता है कि जो है डाइवर्सिटी बेसिकली प्रमोट होता है और इंक्लूजन प्रमोट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आप कुछ सर्टेन प्रैक्टिस के बारे में बता सकते हैं जो कि अगर आपने रिसेंट कभी न्यूज में पढ़ा है या फिर आप गूगल पे भी सर्च के बता सकते हैं क्या ऐसा सर्टेन पॉलिसी है जिसको अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें जिसके वजह से हमारा डाइवर्सिटी और इंक्लूजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव हो। इसके बाद एड्रेसिंग बायस एंड स्टीरियोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्लास सीलिंग जो है एग्जिस्ट करता है जस्ट बिकॉज की एक हिडन बायस जो है वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है कि वुमेन कैन नॉट परफॉर्म very well at the higher position. This is a bias that exists in a society. अब ये बहुत सारे रीजंस हैं बिकॉज उनका एक फैमिली रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर सर्टेन टाइम जो है उनका चाइल्ड जो है उनका जो बच्चा होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीज रीजंस जो है वो एक बायस को जन्म देता है और बायस जो है वो एक ग्लास सीलिंग को जन्म देता है। तो इसी तरह से आपको इस तरह के बायस एंड स्टीरियोटाइप्स जो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में इसको हटाना चाहिए। ऑब्वियसली ये कैसे करना चाहिए, तो इसके अवेयरनेस क्रिएट करिए, सोसाइटी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कल्चर क्रिएट करिए कि दे कैन परफॉर्म बेटर और आपको इसी तरह से वर्क करना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू सम पॉइंट्स, इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेंटरिंग एंड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। ये सब विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। जैसे एस्टैब्लिश फॉर्मल मेंटरिंग प्रोग्राम्स दैट पेयर इंडिविजुअल्स फ्रॉम अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स विद एक्सपीरियंस्ड मेंटर who can provide guidance, support and career advice। तो अगेन इस तरह का चीज मेंटरशिप और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम देना चाहिए ताकि वो जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन है एट दी हायर लेवल्स उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पाए, वो प्रॉपरली इक्विप्ड हो पाए एट वर्किंग एट दी हायर लेवल्स। इसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगेन दिस इज अ सिमिलर पॉइंट। इसके अलावा भी आप कोई और पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। देखिए होता क्या है कि बायस के वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो
जो इवन अ वेल परफॉर्मिंग कैंडिडेट, उसका जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है उसको अलग तरीके से देखा जाता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा जाता है। तो अगर जो होता है ना कि द पर्सन दैट इज मोर सुटेबल फॉर अ जॉब, इस तरह का एक सिस्टम बनाना चाहिए हमारे यहाँ, जिससे इवैल्यूएशन बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हो और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो इससे क्या होगा कि आप जो है बेस्ट टैलेंट को प्रमोट कर पाएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और इररेस्पेक्टिव ऑफ सर्टेन रेसेस। इसके बाद पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या होता है? जनरली जो है गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में बोला जाता है कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे पॉलिसीज लाने चाहिए जो कि इस तरह के चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो सोसाइटी में देखने को मिले। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक बताता हूं कि अगर गवर्नमेंट जो है चाइल्ड केयर सपोर्ट जो है, जो क्रेच सपोर्ट होता है या इस तरह का जो पेरेंटल लीव, इस तरह के नॉर्म्स को जो हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको इंप्रूव करते हैं तो ऑब्वियसली सारे कंपनीज को भी एडेयर करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा है कि रिसेंट टाइम्स में मैटरनिटी बेनिफिट जो है दैट इज कंपलसरी और इसका बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि विमेन्स को जो है आफ्टर मतलब जब दे गिव बर्थ टू चाइल्ड, उसके बाद ऑब्वियसली उनको कुछ टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद दे गेट बैक टू वर्क नॉर्मली। तो ये एक तरह का नॉर्म है, एक तरह का फॉर्मलाइजेशन है जो कि हमारे कॉर्पोरेट्स में एग्जिस्ट करने लगा है, जिसके वजह से वुमेन्स का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज नहीं हुआ है, रादर देन इंक्रीज हुआ है। तो इसी तरह का चीज जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू लाती है तो जो भी आप बोल सकते हैं ना, जो एक तरह से इनविजिबल बैरियर जो कंपनीज में एग्जिस्ट करती थी कि ये कैसे काम कर पाएंगे हायर लेवल पे, वो हट जाता है एंड दे कैन ओनली फोकस ऑन वर्क। तो इस तरह का जो है गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज ला सकती है, जैसे टैक्स इंसेंटिव्स भी दे सकती है। इफ अ कंपनी इज प्रमोटिंग सर्टेन सेक्शन ऑफ, यू मे से दी सेक्शन ऑफ पीपल हायर पोजीशन पे अगर उनको प्रमोट करें तो कुछ एडेड एडवांटेज जो है गवर्नमेंट दे सकती है। तो इस तरह के पॉलिसीज से क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपका वर्क। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखा एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि कैसे जो है किसी, जैसे यहाँ पे मैकेंजी के द्वारा कुछ रिसर्च किया हुआ है, उसको कुछ आप कोट कर सकते हैं। तो देखिए जनरली जो इस तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ग्लास सीलिंग का टॉपिक रहता है ना, तो इस पे बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो उनका भी कुछ फाइंडिंग्स, उनका भी कुछ सेइंग्स आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, लेकिन सोर्स को जरूर कोट करिए कि ये कहां से लिया गया है, तो दैट ऑथेंटिकेट्स योर आंसर। तो इस तरह से आप आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर फ्रेम कर दिया एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मैक्सिमम टाइम दैट यू आर गोइंग टू डू ऑल दीस थिंग्स इज विद इन 9 मिनट्स। 9 मिनट्स के अंदर आपको ये काम करना है। ये यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग विद इन 20 मिनट्स, बट व्हाट यू नीड टू डू इज टू राइट आंसर विद इन 9 मिनट्स। तो इसी कारण बहुत ज्यादा आप कंटेंट पे लेके परेशान मत होइए। मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बोल रखा है कि कंटेंट अगर आपका एवरेज भी है लेकिन आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, आप सारे पॉइंट्स को वैलिडेट करते हैं, आप एक फ्लो बना पाते हैं अपने आंसर में, तो यू आर गोइंग टू गेट अबव 50% मार्क्स। 50% मार्क्स का मतलब क्या हो कि यू आर गोइंग समवेयर अराउंड 7 to 7.5 एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इसी तरह से हम लोग आंसर डिस्कस करते रहेंगे आगे भी, आप इसी को प्रैक्टिस करते रहिए। एक आंसर अगर आप डेली लिख रहे हैं, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2024, अगर आप अगले साल के लिए भी तैयारी करें तो भी अगर आप अभी से एक आंसर डेली लिखते हैं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।